Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम से पठन कर रहे हैं। भागवतम के पहले स्कंद का 11वां अध्याय, श्लोक संख्या 20 और 21। ये सेवा दी गई है मुझे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। नट नर्तक गंधर्वा नट नर्तक गंधर्व सूत मागध वंदिना सूत मागध बंधिना गायन्ति चोत्तम श्लोक गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। चरितानि अद्भुतानि च। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Translation: expert dramatist, artist, dancer, singer, historian, genealogist, and learned speakers all gave their respective contribution, being inspired by the superhuman pastimes of the Lord. Thus they proceeded on and on. Purport: it appears that 5,000 years ago, the society also needed the services of the dramatist, artists, dancers, singers, historians, genealogists, public speakers, etc. Dancers, singers, and dramatist artists mostly hail from the Shudra community, whereas the learned historians, genealogists, and public speakers hail from the Brahmana communities. All of them belong to a particular caste and they become so trained in their respective families. Such dramatists, dancers, singers, historians, genealogists, and public speakers would dwell on the subject of Lord's superhuman activities in different ages and millennium, and not on the ordinary events. Nor were they in chronological order. All the Puranas are historical facts described only in relation with the Supreme Lord in different ages and times, as well as on different planets also. Therefore, we do not find any chronological order. The modern historian, therefore, cannot catch up in the link, and thus they unauthoritatively remark that the Puranas are all imaginary stories only. Even 100 years ago, in India, all dramatic performances were centered around the superhuman activities of the Supreme Lord. The common people would be verily entertained by the performances of drama, and yatra parties played wonderfully on the superhuman activities of the Lord. And thus, even the illiterate agriculturist would be participant in the knowledge of Vedic literature, despite a considerable lack of academic qualification. Therefore, expert players in drama, dancers, singers, speakers, etc., are required for the spiritual enlightenment of the common man. The genealogist would give account completely of the descendants of a particular family. Even at the present moment, the guides in the pilgrimage sites of India submit a complete account of genealogical tables before a newcomer. This wonderful act sometimes attracts more customers to receive such important information. पे श्लोक संख्या जो है, एक मिनट, श्लोक संख्या
22 को हम इसका 21 का भी हम पठन कर लेते हैं। भागवंस्तत्र बंधूनां भवभं तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनाम् पुराणम् अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम् आधदे। सर्वसम्मानम् आधदे। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Lord Krishna, the personality of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of the friends, relatives, citizens, and all others who came to receive and welcome him. Purport. The Supreme Lord Personality of Godhead is neither impersonal nor an inert object unable to reciprocate the feelings of his devotees. Here the word yatha vidhi, or just at it behooves, is significant. He reciprocates just at it behooves with his different types of admirers and devotees. Of course, the pure devotees are of one type only, because they have no other object for service but the Lord, and therefore the Lord also reciprocates with such pure devotees just as it behooves, namely, he is always attentive to all the matters of his pure devotees. There are others who designate him as impersonal, and so the Lord also does not take any personal interest. He satisfies everyone in terms of one's development of spiritual consciousness, and a sample of such reciprocation is exhibited here with his different welcomers. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय गौरपादाय गौरकथां दयानगरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बिना कोई समय व्यर्थ गवाए हम सीधे से जो है इस पर्पस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर पहले हमको ये देखना है कि इन श्लोकों के द्वारा, स्पेशली जो श्लोक संख्या 20 है, उसके अंदर कितने प्रश्नों के उत्तर हमको मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि इन जो जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं, जितने भी महानुभाव बताए गए हैं, कौन कौन से, जैसे बताया ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट, डांसर्स, सिंगर्स, हिस्टोरियन, जियोनोलॉजिस्ट एंड लर्नड स्पीकर्स, ये सब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के बारे में भगवान की कहानियां सुनाते हैं। भगवान की कहानियां मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्यों जरूरत है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आज प्रयास करेंगे समझने का। फिर ये जो लीलाएं हैं, जो आध्यात्मिक लीलाएं हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा प्रश्न होगा। वाई डू द मॉडर्न हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो भगवान के जो लीलाओं को काल्पनिक क्यों समझते हैं, ये तीसरा प्रश्न को हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न है कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं, उनको समझने का सही मार्ग या सही तरीका क्या है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। और पांचवा जो प्रश्न होगा कि जो हमारे अंदर फेथ है, हमारे अंदर जो विश्वास है भगवान के लिए, वो कितना फर्म, कितना मजबूत है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आता है व्हाट इज द नीड ऑफ एवरीवन मेंशनिंग द श्लोकास टू डू सच एक्टिविटीज ऑफ स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में जिन लोगों को जिन उनके अंदर जो उनकी क्वालिटीज हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, वो भगवान की लीलाओं को दर्शाने के लिए कैसे और क्यों उपयोग करते हैं। तो जैसे ड्रामा है, तो ड्रामा करते हैं लोग, मतलब उस ड्रामा के अंदर क्या होता है, भगवान की रामलीला,
या भगवान की जो भी लीलाएं हैं, नरसिम्हा लीला है या भगवान के जो गोवर्धन लीला है, इन लीलाओं को इनैक्ट करते हैं, इन जो लीलाओं को भगवान के सामने और भगवान के भक्तों के सामने जो है प्रकट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? उसके बाद में जो सिंगर्स हैं, जो अच्छे भजन करते हैं, तो भजन क्यों गाते हैं? उसके बाद जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो भगवान की जो पूरी लीलाओं का चिंतन करके भगवान के गुणगान क्यों करते हैं? तो इसको समझने के लिए हमको ये क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो इसका जो मेन कारण क्या है? तो ये कारण ये है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। यानी जब हम देखते हैं, तो ये हमने उदाहरण देखा हुआ है, और हमने जब हम मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा में गए थे, तो जब हम इंडोनेशिया के अंदर गए थे, तो वहां पर एक प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, जो श्री वल्लभ प्रभु ने मतलब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से वो हमको प्रोग्राम दिखाने के लिए गए थे। और वो प्रोग्राम क्या था, वहाँ के लोग, जो इंडोनेशिया के अंदर लोग हैं, बाली के अंदर जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जो लीलाएं वहां पर रामलीला को इनैक्ट कर रहे थे। अभी सोचिए कि जो मुल्क है टोटली मुस्लिम मुल्क है, इट इज इस्लामिक कंट्री, उसके बाद भी वहां पर जो लोग हैं रामलीला की जो लीलाएं हैं वो वहां पर इनैक्ट कर रहे थे, वो वहां पर प्रकट कर रहे थे स्टेज के ऊपर। तो ये क्यों कर रहे थे? तो ये इसलिए कि वो भगवान के गुणगान कर रहे थे, और ये इनके कल्चर में है। इसीलिए जब इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको कहा गया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे नोट के ऊपर गणेश जी का फोटो है, तुम गणेश जी का फोटो निकाल दो वहां से, तुम तो इस्लामिक कंट्री हो, गणेश जी का फोटो तुम्हारे नोट्स के ऊपर क्यों है, करेंसी के ऊपर क्यों है? तब वहां पर उसको उन्होंने जवाब दिया था, इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बोले हमने हमारा धर्म जो है, हमारा जो फेथ है, वो हमने चेंज किया है, वो हमने इस्लाम को कबूल किया है, मगर जो हमने हमारा कल्चर, उसको हमने नहीं छोड़ा है। तो ये कल्चर है, ये हमारे कल्चर, ये पूरे विश्व के अंदर ये कल्चर था, जो अपने सनातन धर्म का। तो ये जो लीला है वो अभी भी आज भी वहां पर इनेक्ट होती है। तो एक कारण ये है। और दूसरा क्या होता है कि ये जितने भी यहाँ पर बताए गए, जैसे सिंगर्स बताए गए, ड्रामेटिस्ट हैं, उसके बाद में जो हिस्टोरियंस है, वो ये जो बातें बताते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को इसके माध्यम से, इन लीलाओं के बारे में, जो इसके बारे में चर्चा होती है, इसके माध्यम से उनको भगवान के बारे में जानने का अवसर मिलता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस श्लोक के अंदर बताई गई है। अब ये देखते हैं कि भाई ये जो यहाँ पर बताया, दिस मीन्स एंटरटेनमेंट, मनोरंजन जो है, मनोरंजन ये क्या है? मनोरंजन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन हमारा स्वभाव है। ये आत्मा का जो स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। हमेशा हमको आनंद में रहना है। तो हम उस आनंद में रहने के लिए क्या करते हैं? तो एंटरटेनमेंट का सही माने में जो मतलब जो हिंदी में आता है मनोरंजन, यानी अपने मन को आनंद देना है। तो आनंद कैसे मिलेगा? आनंद अगर हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जो भक्तों की लीलाओं के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो इससे हमको आनंद मिलेगा। तो आनंद, तो अभी क्या हो गया? तो अभी यहाँ पर जो भौतिक जगत के अंदर है, मनोरंजन क्या हो गया है? मनोरंजन हमारी इंद्र तृप्ति के लिए हो गया है। इसके लिए इंद्र तृप्ति के लिए क्या, उसके अगर इंद्र तृप्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो हम देखते हैं कि इंद्र तृप्ति करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम मुंह के बल गिरते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द, 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो एक है स्मरणंती, एक तो जो इसमें जो शब्द आता है वो आता है गायंती। गायंती का मतलब क्या होता है? गायंती मतलब गुणगान करना, गाना। तो गायंती का दूसरा अर्थ ये होता है कि किसी के बारे में, यानी कि भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके बारे में गुणगान करना, इसको गायंती कहते हैं। तो जो नवविधा भक्ति के अंदर पहला जो आता है वो कौन सा है? वो श्रवणम है। उसके बाद में क्या है? श्रवणम, फिर उसके बाद में आता है कीर्तनम, यानी कीर्तन करना है आपको। तो आपको कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति के बारे में चर्चा करना। तो जब हम ये
इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमको कुंती महारानी की जो स्तुति है उनके उसके अंदर से जो ये श्लोक याद आता है, श्रुवंती गायंती गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। इसका अर्थ क्या होता है? ओ कृष्णा, those who are continuously hearing, chanting and repeating your transcendental activities or take pleasure to others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो इस श्लोक से हमको क्या पता चलता है कि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में गाएंगे और भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा? तो इस श्लोक के माध्यम से जो कुंती महारानी बता रही है वो ये बता रही है कि आपको वो भगवान के जो चरण कमल है उनका दर्शन करेंगे और ऐसा दर्शन करने से आप जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्करों से बच सकते हो। तो एक कारण ये भी है कि हमको ये क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग जो जितने भी यहाँ पर महानुभाव बताए गए हैं, जितने भी वहां पर जीव हैं, वो भगवान की लीलाओं के बारे में द्वारका के अंदर ये करते रहते हैं। उसके बाद में इस श्लोक के अंदर दूसरा शब्द आता है अद्भुत। तो द वर्ड अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या है? मतलब बहुत ही जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो उसके अंदर द वर्ड अद्भुता हम किसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं? तो हम जब देखते हैं कि नरसिम्हा लीला के अंदर, नरसिम्हा आरती के अंदर अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपो तव भृंगा, तो इसमें अद्भुत श्रृंगार क्या है? नरसिम्हा भगवान का अद्भुत श्रृंगार जो है वो उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो नरसिम्हा भगवान की जो अद्भुत श्रृंगार है उसके बारे में एक लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी बात सुनी थी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि भगवान जब नरसिम्हा अवतरित हुए थे तो उन्होंने 3 चीजों को नकारा था मतलब उसको निगेट किया था। तो 3 कौन से चीजें हैं भगवान नरसिम्हा भगवान ने निगेट किए थे? तो उन्होंने 3 चीजें हैं, एक है क्रिएशन, एक है इमोशन, एक है फॉर्मेशन। तो भगवान जो भी चीज करते हैं वो अद्भुत करते हैं, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो हम मतलब उसकी वो अचिंत है, जिसके बारे में हम कभी चिंता नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतनी मतलब उससे आगे भगवान करते हैं। तो यहाँ पर 3 जो मैंने बातें बताई नरसिम्हा लीला के माध्यम से, तो वहां पर 3 चीजों को नरसिम्हा भगवान ने डिफाई किया है, यानी उनको कंप्लीट तरह से निगेट किया है। वो 3 चीजें क्या है? तो एक तो क्रिएशन, उसके बाद में इमोशन एंड थर्ड इज फॉर्मेशन। तो क्रिएशन कैसे उन्होंने डिफाई किया? तो 84 लाख योनियों के अंदर ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो नरसिम्हा भगवान जिसके अंदर अवतरित, नरसिम्हा भगवान जिसमें अवतरित हुए वो ऐसी कोई योनि नहीं है, मगर वो इससे बाहर है। यानी भगवान की ये एक जो उन्होंने बात जो वो निगेट किया है, ये बात को उन्होंने जो है नकारा है। उसके बाद में क्रिएशन के बाद में आता है इमोशंस। तो इमोशंस के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो शास्त्रों के अंदर बताया गया है, नाट्य शास्त्र के अंदर स्पेशली ये बताया गया है कि जो हमारी 2 आंखें हैं, वो 2 आंखें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक आंख हंस रही है और एक आंख रो रही है, एक आंख जो गुस्सा कर रही है और एक आंख जो है प्रेम भाव दिखा रही है। तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों आंखें एक साथ में दोनों कोई भी जो हमारा भाव है उसको व्यक्त करती हैं। मगर जब नरसिम्हा लीला के अंदर हम देखते हैं कि भगवान की एक आंख जो प्रहलाद महाराज की तरफ थी वो स्नेह भाव से थी, और भगवान की दूसरी आंख जो हिरण्यकश्यप की तरफ थी वो गुस्से से थी। तो ये 2 अलग प्रकार के जो भाव हैं वो भगवान अपनी इस लीला के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं। और तीसरा जो है फॉर्मेशन यानी जो फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, जो आकार होता है। तो हमने यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब ये लीला सुनते हैं और जब हम लीला भगवान की नरसिम्हा भगवान की जो आरती गाते हैं, तो तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। तो तव कर, जो भगवान के जो कर हैं यानी हम के भगवान के हाथ हैं, वो कैसे हैं? वो कमल की तरह हैं। और उनके जो नाखून हैं, भगवान के जो नेल्स हैं, जो नरसिम्हा भगवान के जो नेल्स हैं, वो कैसे हैं? वो ऐसे वज्र की तरह हैं। यानी जो एक उनके हाथ कैसे हैं? भगवान के हाथ जो हैं वो कमल की पंखुड़ियों के तरह सॉफ्ट हैं, मगर उसी हाथ के अंदर जो भगवान के नख हैं, जो नाखून हैं, वो कैसे हैं? वो वज्र की तरह स्ट्रांग हैं। तो ऐसे टाइप का फॉर्मेशन किधर देखने को नहीं मिलता कि जो बहुत सॉफ्ट भी हो, एट द सेम टाइम इट इज इतना मजबूत हो कि इसको कोई चीज तोड़ नहीं सकती। तो ऐसे टाइप का फॉर्मेशन भगवान ही सिर्फ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया दूसरा एक श्लोक आता है, इसके अंदर आता है उत्तमा।
तो उत्तम का मतलब क्या होता है? उत यानी बियॉन्ड यानी परे, और तमा, तमा यानी डार्कनेस। तो जो डार्कनेस से परे है, यानी जो पूर्ण रूप से उज्ज्वलित है, और जो पूर्ण रूप से जो हमको रोशनी देता है, ज्ञान की रोशनी देता है, वो श्री भगवान है। तो हमने ये जो श्लोक भी सुना हुआ है प्रहलाद महाराज की, ये नरसिंह भगवान की लीला के अंदर था कि निवृत्त तृषई उपगीयमानात् भव औषध श्लोक मनोभिरामात्। तो वहां पर भी श्लोक मनोभिरामात् आता है कि श्लोक तो उत्तम श्लोक मनोभिरामात्। तो उस लीला के अंदर भी क्या बताया गया है? उस लीला के अंदर भी बताया गया है कि जो भव सागर से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना है? इन उत्तम श्लोकों के माध्यम से भगवान की लीलाओं का गुणगान करना है। तो यानी इससे हम, और उस श्लोक के अंदर क्या बताया गया था? जो प्रहलाद महाराज की लीला है, नरसिंह भगवान की लीला, जहां पर प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि निवृत्त तृषई उपगीयमानात् भव औषध स्रोत मनोभिरामात्। ये भव सागर के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो इस सागर के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इन उत्तम श्लोकों का जो जब उसका रटन करेंगे, उसके माध्यम से हम भगवान का गुणगान करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे एक तो हम इस भवसागर से बच सकते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों से बच सकते हैं। सिमिलरली इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हम ये जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से चक्कर से बच सकते हैं, तो ये प्रहलाद महाराज अपने बताते हैं। और यहाँ पर जो हमने पहले श्लोक सुना था जिसके अंदर श्रवंती गायंती, जो कुंती महारानी कहती है, कुंती महारानी क्या कहती है कि अगर ये बार बार अगर हम भगवान के नामों का और उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके उन लीलाओं के अंदर अगर हम आनंद लेते रहेंगे, तो हम 100% भगवान के चरण कमलों का दर्शन करेंगे। और जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लिया, वो कभी भी इस भव सागर के अंदर आकर नहीं फंसेगा। तो अगर वहां पर जो ऑलरेडी द्वारका के अंदर व्यासी हैं, उनको भी ये पता है, इसके लिए भगवान के हमेशा गुणगान करते रहते हैं। और वो ऐसे गुणगान क्यों करते रहते हैं कि वहां पर है, और वो उनके माध्यम से हमको ये सीख मिलती है कि हमको भगवान के हमेशा गुणगान करने चाहिए, ताकि हम उस धाम में जाके वहां पर भी हम भगवान का गुणगान कर सकें। अब यहाँ पर वो बात आती है कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो है उसकी क्या जरूरत है? जीवात्मा वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए लालायित है, क्योंकि वो भगवान को भी मनोरंजन चाहिए, और हम भगवान के अंश हैं तो हमको भी मनोरंजन चाहिए। मगर होता ये है कि जब हम इस भव सागर के अंदर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस संसार के अंदर, मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, जो भौतिक जगत है उसके अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पर यहाँ की चीजों के साथ में प्रभावित हो जाते हैं। और हम वो आनंद, वो जो एंटरटेनमेंट है, वो मनोरंजन हम किस में देखते हैं? हम वो भौतिक चीजों में देखते हैं। और भौतिक चीजों के अंदर अगर वो जब हम उसका प्रयास करते हैं तो वो हमको कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भौतिक चीजें जो है क्षण भंगुर है, वो क्षण के साथ में खत्म हो जाती है। मगर जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के धाम में अगर हम वो करेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होती। भगवान की लीलाओं के, भगवान के धाम में जाके वहां पर करेंगे तो उनके अंदर और भी हमारी जो हमारे अंदर मन के अंदर रस है वो और भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी आता है। उसके बाद में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप सही मायने में, अगर आपको जॉयफुल रहना है, अगर आपको आनंदित रहना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जब आप अपने मन के हिसाब से करोगे, आपके मन के हिसाब से जो कार्य करोगे, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो वो हमने जो ये 3 इडियट्स मूवी के अंदर भी बताया है कि जिस कार्य में आपको रुचि है, वो कार्य अगर आप करोगे तो उसके अंदर आपके अंदर जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर हुनर है, वो और भी निखरता है, और भी बढ़ता है। तो और अगर इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना, इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, प्ले गोल्फ। तो गोल्फ क्यों खेलने जाते हैं लोग? जो भी बिजनेसमैन है वो गोल्फ इसके लिए खेलने जाते हैं कि वहां पर जाके वहां पर बहुत बड़े बड़े धनी लोग आते हैं, जिनके साथ में वो खेलते भी हैं, उनसे बातें करते हैं, बातें करके उनकी रुचि को जानते हैं। और जैसे वहां पर उनकी रुचि मिल जाती है तो उनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। मगर हमको आध्यात्मिक
बिजनेस को ग्रो करना, यानी हमको हमारी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाना है। तो हमारी आध्यात्मिक स्थिति कैसे बढ़ सकती है? भगवान की लीलाओं के बारे में हम चिंतन करते रहेंगे और भगवान की लीलाओं के बारे में गुणगान करते रहेंगे, तो हमारा ये बिजनेस जो स्पिरिचुअल बिजनेस है वो बढ़ सकता है। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया, ये हमने अनुभव किया है। कैसे? जब हम कीर्तन में जाते हैं, हम कीर्तन में जानते हैं, तो हम थोड़ी देर के अंदर हम आसपास की सराउंडिंग्स, जो वातावरण है, आसपास में कौन से लोग हैं, क्या है, वो हम सब भूल जाते हैं और हम किस तरह नृत्य करना शुरू कर देते हैं, एक बच्चे की तरह हम जो है नृत्य करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है कि हमको मनोरंजन चाहिए। अगर मनोरंजन हमको सही मायने में कहाँ ले जाएगा? मनोरंजन अगर हम आध्यात्मिक जो है उसके हिसाब से करेंगे तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, और अगर हम जो है भौतिक जगत के हिसाब से करेंगे तो यहीं पर फंसे रहेंगे। और भौतिक जगत के अंदर इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मनोरंजन के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हमको कार्य करने के लिए कर रहे हैं, तो अगर इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर और भी उस चीज के अंदर फंसते रहेंगे। अभी यहाँ पर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है, वो भगवान की लीलाओं को, ये प्रश्न तीसरा है कि भगवान की लीलाओं को वो क्यों काल्पनिक समझते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि जब आदमी जो ये ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग अपनी इच्छा के लिए करता है, तो वहां पर क्या होता है? तो कृष्ण बहिर्मुख हाना भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया धरे। तो अगर हम, ये चैतन्य चरितामृत से है, जो कहते हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कृष्ण से हम बहिर्मुख हैं, कृष्ण के विपरीत हो गए, तो हम क्या हो जाते हैं? हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो वहां पर पास ही कौन खड़ी है? माया देवी खड़ी है। वो आके आपको झपट लेती है, वो आके आपको पकड़ लेती है। द रिसर्चर्स इंडिकेट दैट व्हाइल वी कॉन्सिडर एंड थिंक, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से हमारा ध्यान रहता है, ये रिसर्चर्स बताते हैं। अगर रिसर्चर्स क्या बताते हैं? जिन्होंने रिसर्च किया, वो भौतिक जगत के हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया, तो कहते हैं कि जब किसी चीज के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, ध्यानपूर्वक उस चीज को समझने का प्रयास करते हो और उसके बाद में सतत चिंतन करते रहते हो, तो ऐसा क्या होता है कि आपके जो शरीर के अंदर जितने भी मसल्स हैं, वो आपके कार्य करने से पहले ही उत्तेजित हो जाते हैं। यानी वो मसल्स ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं कि आपको वो कार्य करना है। तो डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड, ये जो है ना, ये चीज हम जो डिवोटी है, शुद्ध भक्त हैं और भक्त लोग लीलाओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हमने देखा है कि एक ब्राह्मण था, वो मानस पूजा से भगवान जी को खीर अर्पण कर रहे थे, मगर उन्होंने इतने कॉन्सेंट्रेटली, इतने ध्यानपूर्वक वो भगवान को अपना भोगा ऑफर कर रहे थे, तो उनका ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कि खीर गर्म है, तो मन से ये भगवान को अर्पण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मन के अंदर उन्होंने मन के माध्यम से वो देख रहे थे कि वहां खीर का जो प्याला था उसके अंदर उन्होंने उंगली अपनी डाली, उन्होंने अपनी जब उंगली डाली तो उनकी उंगली जो है वो उनको गर्म लगा, उनकी उंगली जल गई। तो ये मन से वो पूजा कर रहे थे, वहां पर सही माने में खीर नहीं थी, मगर मन से जब वो पूजा कर रहे थे भगवान की और भगवान को भोगा ऑफर कर रहे थे, जब उन्होंने खीर को गर्म है या ठंडा है या बरोबर है वो देखने का प्रयास किया, तो उनकी उंगली जल गई। तो ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मन, जो हमारा माइंड है, कितना पावरफुल है। अगर हम मानस पूजा करते हैं तो भी हम जो अपने शरीर के ऊपर उसका अनुभव कर सकते हैं। When we hear or see, think about the stories with full concentration, अगर हम पूरे ध्यान पूर्वक किसी चीज को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हम उस कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल अगर हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो किसी कैरेक्टर को ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेटली कोई देखते हैं हम उस पिक्चर को, तो हम उस कैरेक्टर के साथ में, और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो पूरा उस कैरेक्टर के साथ में चलना शुरू हो जाता है। और जब वो कैरेक्टर किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाता है या ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, तो उसको डर लगता है, वहां पर डर लगता है, या तो उसको जो है किसी के साथ में प्रेम का भाव आता है, या तो उसको जो है किसी दर्द का भाव आता है, तो वो अनुभव हम भी करते हैं और हम वहां पर पिक्चर देखते देखते रोते भी हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उसके साथ में, उसके मन और हमारी बुद्धि को उसके साथ में चलने के लिए कह दिया है। तो ठीक उसी तरह हम अपनी तीव्रता से जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान के बारे में गाएंगे, तो हम भगवान की उन लीलाओं के अंदर जो है जा सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते थे
कि जो है कि मतलब वाइफ जो होती है, जो पत्नी होती है, वो हमेशा अपने हस्बैंड की सुनना चाहिए और हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए। तो ये अनुभव संभव नहीं था। कहाँ किसके लिए संभव नहीं था? वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जो लड़कियां हैं उन्होंने कभी देखा नहीं था कि उनके माता-पिता उनकी माता और पिता कैसे बिहेव करते हैं, मतलब सबमिसिवली बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्होंने देखा नहीं था। नहीं उन्होंने उन्हें अपनी फैमिली में देखा था। तो वो जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को सुना तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक वैदिक वाइफ यानी वेदों के अंदर वर्णित एक पत्नी कैसे हो सकती है, वो हम कैसे मतलब उसका वो हम कैसे बन सकती हैं, जो डिवोटीज बने थे श्रील प्रभुपाद के मिशन के अंदर। तो वो उनको वो लालायित हो गई और वो सोच रही थी कि हम जो है एक जो परफेक्ट मतलब वैदिक वाइफ कैसे बन सकती है अपने पति के। तो जब ये उनके अंदर ये भाव आया तो क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि उनकी माँ है वो अपने पति से कैसे बिहेव करती है। बट ये कहाँ पर है? ये हमारे जो इंडिया के अंदर ये बचपन से हम देखते रहे कि जो माता होती है वो अपने बच्चे को सिखाती रहती है कि भाई नहीं, पिता वो अपने हस्बैंड को जो है सम्मान करती है, उनकी बातें सुनती है, उनको उनको समझती है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करती। तो ये जो बच्चे सीखते हैं वो उन्होंने उसके जो है उनके एसोसिएशन में सीखा, मगर ये एसोसिएशन वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं मिल रहा था। तो तब वहां पर बताते हैं कि तब क्या काम आता है? तब ये लीलाएं और जो कहानियां हैं जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है उसके माध्यम से वो हम सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्वालिटीज देखी, सीता मैया की क्वालिटीज क्या है, माता रुक्मिणी की क्वालिटीज क्या है, माता जो सत्यभामा की क्वालिटीज क्या है, तो उन्होंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लेडीज थी उन्होंने जब ये बातों को इन कहानियों के द्वारा सुना और कहानियों के द्वारा इन लीलाओं के द्वारा समझने का प्रयास किया तो उनको पता चला कि इस प्रकार से हम अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं और हम भी इस तरह से एक वैदिक जो वहां पर गुण बताए हैं जो सीता माता के अंदर, रुक्मिणी माता जी के अंदर और सत्यभामा के अंदर, तो वो हम अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज को इम्बाइब करें और अपने अंदर उस लाने का प्रयास करें। आगे चल के हम देखते हैं कि हिस्टोरियन क्यों बोलते हैं कि भाई ये सब काल्पनिक है, क्योंकि अगर जब वो हिस्टोरियन ये सुनते हैं कि युगा कितने होते हैं तो हमारे शास्त्र बताते हैं सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा और कल युगा। तो ये बताते हैं कि भाई सिंक्रोनाइज तो है नहीं, सत्य युगा के बाद में तो द्वापर आना चाहिए, द्वापर यानी 2 और त्रेता यानी 3, तो पहले त्रेता फिर द्वापर क्यों आता है? तो ये वो समझ नहीं पाते। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश के अंदर ये वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो का मतलब होता है टाइम और लॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंशियल, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो ऐसे शास्त्रों के अंदर अगर वो उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं जो हिस्टोरियन है, जो भौतिकवादी हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? तो इसका एक उदाहरण है। जब हिरण्यकशिपु को मतलब हिरण्यकशिपु का अंत आया और नरसिंह भगवान ने उनका जो वध किया, तो शास्त्रों के अंदर बताते हैं कि हिरण्यकशिपु को जो है मोक्ष मिल गया। तो ये वो समझ नहीं पाते कि वो तो एक डीमन था, वो तो एक राक्षस था, तो वो उस राक्षस को उसने इतने सारे गलत काम किए थे तो उसको मोक्ष कैसे मिला? तो पहला प्रश्न ये उठता है। बाद में जब हम ये बताते हैं कि भाई हिरण्यकशिपु तो पिछले जन्म के अंदर जय विजय थे, तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि आगे चल के ये जो है रावण बनेंगे और कुंभकर्ण बनेंगे, तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब उनको सीक्वेंस, क्योंकि शास्त्र जो है सीक्वेंस के अंदर नहीं बताया गया है, शास्त्रों के अंदर बहुत सारी लीलाएं ऐसे है, कोई इस युग की है, कोई उस युग की है, कोई इस जो है ब्रह्मांड की, कोई दूसरे ब्रह्मांड की है। इस वजह से वो इसको जो है समझने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भगवान की सेवा में या भगवान के शुद्ध भक्तों के सेवा में प्रयास नहीं करते, उनको समझने का प्रयास नहीं करते। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ हियरिंग दिस स्टोरीज? तो इन जो लीलाओं को सुनने का सही माने में तरीका क्या है? तो हमको बहुत ही एकदम स्ट्रांग हमको विश्वास होना चाहिए, हमको श्रद्धा होनी चाहिए और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। किस तरह? जैसे इंग्लिश में कहते हैं वी शुड हैव द फेथ एज फर्म एज अ रॉक, यानी जो पत्थर होता है ना, पत्थर की तरह हमारा फेथ फर्म होना चाहिए जो टूटे नहीं। और इसको जो हमारे अंदर फेथ तो है, वैसे ही हमारे अंदर फेथ है, सबके अंदर फेथ होता है। अगर फेथ नहीं होता तो हम अगर जो है नाई के पास नहीं जाते, अपनी गर्दन वहां पर नहीं देते कि उस गर्दन के ऊपर और सर के ऊपर जो बाल है उसको ट्रिम करो।
अगर हमको नाई के ऊपर विश्वास है कि हमारे बाल ही काटेगा, हमारी गर्दन नहीं काटेगा, तो शिला प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि वी नो दैट ही विल कट he'll cut our hair, he'll tend our hair, but he not cut our throat. तो ये फेथ तो है, हम सबके अंदर है, थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। तो इस फेथ को, यानी इस विश्वास को, इस श्रद्धा को और ज्यादा दृढ़ कैसे बनाए, तो हम देखते हैं कि पहले तो श्रद्धा आती है। श्रद्धा कैसे आती है? आपने पहले अज्ञात सुकृति कुछ की होगी, अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से आपकी श्रद्धा आती है। श्रद्धा के बाद में आपको साधु का संग चाहिए, जिससे आप साधु संग से आपकी श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी। उसके बाद में भजन करना चाहिए, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए। आपके अंदर जितने भी अनर्थास हैं, उनको ऐसे करके अनर्थ है, निष्ठा है, रुचि है, फिर उसके बाद में आसक्ति है, भाव है और प्रेम है। तो अंत जो आता है वो प्रेम आता है। तो इसी को मतलब ये तरीका है। और इस तरह से हमने अभी देखे कि किस 5 जो प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों का हमने उत्तर देने का प्रयास किया और उसको हमने समझा है। तो जो पहला हमने देखा था कि प्रश्न कौन सा था कि क्यों ये सब जो है वहां पर भगवान के गुणगान करते हैं। उसके बाद में भगवान की लीलाओं और भगवान की स्टोरीज सुनने को क्या महत्व है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न हमने कि इतिहासकार, जो भौतिक इतिहासकार हैं, वो इसको काल्पनिक क्यों समझते हैं। चौथा प्रश्न हमने देखा था कि सही तरीके से समझने का, इन लीलाओं को समझने का जो तरीका क्या है, तो वो है एक हमको बहुत दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और चौथा कि हमने हमारी श्रद्धा को और मजबूत कैसे बना सकते हैं, वो हमने इन 5 प्रश्नों का उत्तर प्रयास किया इसके माध्यम से। अभी आता है श्लोक संख्या जो 21वां, श्रीमद् भागवतम का जो 21वां जो पहले स्कंद का 11वां अध्याय और 21वां श्लोक है। तो इसके बारे में क्या बताते हैं कि भगवान ने देखा कि सब जो भक्त आके, जितने भी वहां के द्वारकावासी है, वो अपने अपने तरीके से आके भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर इस जो श्लोक संख्या 21 के अंदर बताया है कि भगवान उसी को इसी प्रकार वो रेसिप्रोकेट करते हैं। द सुप्रीम लॉ पर्सनालिटी ऑफ गॉड, नाइदर इम्पर्सनल, वो भगवान जो है जो नहीं इम्पर्सनल है, नहीं पर्सनल है। तो भगवान वैसे भी जो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि भगवान पर्सनल है। तो भगवद गीता का जो वर्ष, भगवद गीता के 4थे अध्याय के अंदर 11वां जो श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान वो उसके क्या बताते हैं, इन वॉट एवर वे पीपल सरेंडर अनटू मी। भगवद गीता के अंदर भी ये बताया कि जिस प्रकार से हम भगवान की, जिस आसक्ति से हम भगवान की तरफ, भगवान के समक्ष जो खड़े होकर हम अपने आप को भगवान की शरणागत हो जाएंगे, उसी प्रकार भगवान उसी लेवल के अंदर भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। और भगवान यहाँ पर उस श्लोक के अंदर ये भी बता दें कि कोई भी नोइंगली और अननोइंगली, जानकर या अनजाने के अंदर, वो भगवान के मार्ग पर ही चलता है। ये वो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं। तो इस जो श्लोक के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे को तैसा, यानी जैसे हम जितना हमारी दृढ़ता से हम भगवान के प्रति जाएंगे, भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक उसी तरह तैसा ही भगवान हमारे साथ में आचरण करेंगे, भगवान हमारे साथ में ऐसे ही व्यवहार करेंगे। इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहाँ पर जो है बंद करता हूँ, या इसको आराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो या कोई मिस्टेक्स हो तो आप मुझे करेक्ट करें, और किसी को अपने कमेंट्स ऐड करने हो तो प्लीज डू ऐड द कमेंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? यस प्रभु, आ रहा है। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा और एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने दिया प्रभु। बहुत सा चीज़ आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको बताया, तो थैंक यू। और जैसे वही मतलब जितने डांसर्स और ये सब जो वहाँ पे उपस्थित थे, और कैसे मतलब उनका पूरा जो श्लोका का जो पर्पट है बहुत अच्छे से आपने कवर किया ब्रो, तो थैंक यू वेरी मच। इसमें खाली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि जैसे उस समय के जो डांसर्स थे, प्रभुपाद जी पर्पट में मेंशन करते हैं, सिंगर्स थे, ड्रामा वाले थे, ये सब जो थे ये शूद्र कैटेगरी के थे।
तो और ये लोग जो है सिर्फ भगवान का पास टाइम ही करते थे शूद्र होने के बावजूद भी। लेकिन आजकल के अगर हम लोग देखें आज के कलयुग में मतलब इनको एकदम सेलिब्रिटी बना दिया है इनको, ये जो जितने एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, मतलब इतना बड़ा इनको मतलब ऐसा भगवान की तरफ पूछते हैं। कहीं कहीं तो इनके टेम्पल्स भी बना दिए, मतलब लोग इतना भटक गए हैं। और दूसरा चीज है कि ना तो ये भगवान के बारे में कुछ करते हैं, ना भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, ना भगवान के बारे में किसी को बताते हैं। सो दे आर जस्ट डूइंग। तो जो आपने जो बताया कि मनोरंजन और इंद्रिय तृप्ति का जो फर्क बताया आपने, दैट वाज वेरी नाइस। और आजकल यही हो रहा है bro। तो यही मुझे एक पॉइंट हाईलाइट करना था। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for adding these points. Hare Krishna. हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो अद्भुत के बारे में बताया वो आपका सब लेक्चर अच्छे रहते हैं, ये भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी। आपने जैसे बताया कि भगवान का गुणगान, जो 5 पॉइंट जो गुणगान है, हेयरिंग, स्टोरी है, काल्पनिक, फेथ, कैसा फेथ बढ़ाना चाहिए, ये बहुत अच्छा। और क्रोनोलॉजी के बारे में आपने बताया कि फर्म फेथ कैसा, भगवान के चरण कमल के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया। प्रभु जी, मैं जैसे आपने बताया एक पॉइंट गोल के बारे में, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी। जैसे आप बोल रहे थे गोल कि हम लोग का भक्ति बढ़ना चाहिए, तो उसके ऊपर एक शिला प्रभुपाद जी का एक पास्टर है प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और तो उनके साथ उनके भक्त भी जा रहे थे उनके शिला प्रभुपाद के साथ। तो उधर एक आदमी गोल्फ खेल रहा था यूरोप में, और प्रभुपाद वही इधर से जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने उधर रुके और बोला कि उनके शिष्य को पूछा कि व्हाट ही इज डूइंग। तो उसने कहा कि प्रभुपाद ही इज प्लेइंग गोल्फ। प्रभुपाद ने वापस पूछा व्हाट ही इज डूइंग। तो उसने उनके डिसाइपल ने कहा, प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने, ही इज प्लेइंग गोल्फ। तो प्रभुपाद वापस रुके, एकदम स्टेयर करके बोले इज वेस्टिंग हिज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और प्रभुपाद बोले कि एट दिस मॉर्निंग 6:30 he should practice in Krishna consciousness. He just simply wasting human form of life। और प्रभुपाद रो रहे थे, आंख में पानी आया प्रभुपाद के। प्रभुपाद बोल रहे अगर हम लोग का ये जो मॉर्निंग समय है, अगर हम लोग भगवत भक्ति के लिए नहीं यूज करेंगे तो हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। Thank you very much, Prabhu, for sharing this wonderful pastime of Srila Prabhupada and what he has explained. सही माने में वही है कि जो भौतिक, क्योंकि समय बहुत कम था तो मैं बहुत सारी पॉइंट्स ऐड करनी थी, बट नेवरदलेस ये जो बात आपने बताई बहुत अच्छी बताई कि श्रीला प्रभुपाद realize that you, and it's true that we are wasting our time। सुबह को उठ के अगर हम गोल्फ खेलने जाते हैं it's wasting time, बट भौतिकवादी यही करते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि क्लास के अंदर कि इफ यू वांट टू ग्रो इन बिजनेस यू हैव टू प्ले गोल्फ, ये इनका एक वे है। तो हमारे अरबाब भी यहाँ पर जो है अभी लोकल हैं, मगर अभी वो भी जो है कंदूरा पहन के जाते हैं खेलने के लिए गोल्फ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। उद्धव प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का जो क्लास था वेरी नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट थे प्रभु। एंड जैसे कि आपने भगवान नरसिंह देव के ऊपर बहुत काफी सारे पॉइंट बताए, विच वाज मैं पहली बार ये सुना, जैसे कि वो एक आंख से वो प्रहलाद महाराज जी को स्नेह कर रहे थे, दूसरे आंख से वो गुस्सा करते हैं। मतलब वो एक बहुत मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा प्रभु। एंड इट वाज न्यू फॉर मी। And thank you so much, Prabhu. It was an amazing class, Prabhu. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्ण ठाकुर, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत। बहुत ही अच्छा है ठाकुर, आप ठाकुर है प्रभु, मैं तो आपका कुकर है जो भी है प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास था आपका। क्लास जब होती है प्रभु हमेशा क्या फिलोसॉफिकल क्लास होता है, बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने जैसे अभी
बताया ना, वो मतलब एक जानकारी हुआ, जैसे क्रिएशन, इमोशन और फॉर्मेशन के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, ये तो जानकारी नहीं था। तो आपने जब क्लास देता है, मैं एग्जैक्टली क्या बहुत से सारे मतलब ऐसा ऐसा पॉइंट बता देता है, मैं तो नोट कर लेता है, तुरंत नोट के। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। समीर प्रभु जी प्रभु, हरे बहुत कृष्णा। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब जैसे सर्वोदय गिरधर प्रभु जी या फिर प्रेम सखा प्रभु जी ने बोला, अपने नरसिम्हा देव के ऊपर, भगवान के ऊपर जो जिस तरीके से वो उनको उनके एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से अपने एक्सप्लेन किया ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। एक्चुअली नरसिम्हा लीला के ऊपर ये जब भी नरसिम्हा चतुर्दशी आएगी ना, तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन हम लोग इस एक बहुत सुंदर मेरे पास लेक्चर है, काफी टाइम पहले मैंने सुना था, तो अभी पूरा याद नहीं है, मगर वो उस समय पे हम इसके बारे में चर्चा की थी। बहुत बहुत यानी बहुत इंफॉर्मेटिव है। इट इज रियली अमेजिंग, दैट लेक्चर इज रियली अमेजिंग। एंड उसके मैंने नोट्स बना के रखे हैं, तो भी जब ये आएगी नरसिम्हा चतुर्दशी आएगी तो वी विल शेयर दैट। इट्स रियली अमेजिंग दैट वो जब से वो मैंने क्लास सुना है तभी नरसिम्हा देव के प्रति तो इतना मतलब जो आसक्त हो गए हैं कि आई वांट टू सी नरसिम्हा देव। दैट्स आफ्टर हियरिंग दैट क्लास। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी व्हाई शुड वी वेट टिल नरसिम्हा चतुर्दशी प्रभु जी? जिस दिन कोई अच्छा दिन मिल जाएगा तो हम लोग वी कैन हैव दैट डिस्कशन ना। Why should we wait for some अच्छे दिन? रोज अच्छा ही दिन है प्रभु, हर दिन को हम अच्छा कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली तो फिर व्हाई आर वी वेटिंग टिल नरसिम्हा चतुर्दशी? हम लोग आज ही रख सकते हैं प्रभु जी। नहीं हरे तो प्रभु कृष्णा। प्रभु इसके ऊपर जो है तर्क ये आता है कि ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड है, हर जगह पे कोई भी ना कोई लीला होती, मतलब कंटिन्यूटी में है। तो हम वही समझ लेना कि आज नरसिम्हा चतुर्दशी है किसी ब्रह्मांड के अंदर, किसी लोक के अंदर, तो आज ही डिस्कशन करते हैं, जैसे बोलिए आप प्रभु। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था प्रभु जी, आज ही कर लेते। व्हाई वेट टिल नरसिम्हा चतुर्दशी इन दिस ब्रह्मांड। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। या श्योर प्रभु, आज इवनिंग में हम लोग बोल लेते हैं प्रभु। यस, ठीक है प्रभु। और दूसरा और एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे, बोलिए ना कि प्रभु। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे पॉइंट है एंड यू कैनॉट कवर, तो अगर टाइम नहीं भी है तो सभी भक्तों से मतलब खाली मतलब जो नॉट ओनली जो स्पीकर हैं बट इवन जो डिवोटीज हैं जो अपना पॉइंट्स कुछ नहीं बोल पाए टाइम की कमी की वजह से, तो दे कैन पुट इट इन द ग्रुप एज ए वॉइस नोट्स। तो वो भी मैं क्या करता हूँ, वो फिर जो वीडियोज है उसमें ऐड कर देता हूँ मैं एज ए वॉइस नोट। तो अगर आपका प्रभु श्योर कुछ अगर पॉइंट्स है तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, या किसी का भी। हरे कृष्णा। Sure. Thank you so much, Prabhu. Thank you. You are doing a wonderful seva, Prabhu. नहीं, यही कि बस ये इतना सारा जो नॉलेज हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे जो कुछ 10-15 लोगों के बीच में है, तो इट शुड रीच टू मेनी अदर पीपल। तो ये एक इंटेंशन से हम लोग ये कर रहे हैं बस ये। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। Hare Krishna, धन्यवाद प्रभु। Please, Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जीव पावन प्रभु, केम छो?